उधर से कुछ नॉइज आ रही वीडियो से। स्टार्ट करें। ओके सर, स्टार्ट करिए। ओके सर, ये स्टार्ट। Very good afternoon, all the students present here. Today I am going to take your class on Unit 6, Environmental Policies, Practices and Sustainable Development with the some environmental laws. In this, I am going to discuss about what is sustainable development and how we can sustain our environment, okay, at an optimum level, and how many types of policies in India and in all over the world which are used and which can help in improving our environment and our society. Okay, so first thing is, what is sustainable development? How we can define the sustainable development is, okay. So sustainable development means development without any destruction activity. Development without any destruction activity, that means ऐसा डेवलपमेंट हो जिसमें हमको कोई भी लॉस ना हो, isn't it? ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हमको कोई लॉस नहीं होता, दैट इज कॉल्ड एज ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, ऐसा डेवलपमेंट जिसमें कोई भी लॉस नहीं होता, दैट इज कॉल्ड एज ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, अब लॉस कहाँ पे नहीं होगा, जस्ट थिंक, as our population is increasing day by day, our demand is also increasing, and we basically depend upon natural resources which is around us, maybe lithosphere, hydrosphere, or atmosphere. For example, we are taking agricultural substances like wheat and rice from the agricultural sources, that is also a natural resource. Okay, so if our population will increase, our food demand is increased. So for our fooding purpose, to control or to complete our fooding, हम क्या करेंगे, प्लांट को कट कर देंगे, फॉरेस्ट एरिया को कट कर देंगे, और वहां पे एग्रीकल्चर का यूज करेंगे, कृषि का यूज करेंगे ज्यादा से ज्यादा। ओके, सो बेसिक इसका मतलब हो गया कि हमने प्लांट को कट कर दिया और वहां पे एग्रीकल्चर को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सस्टेनेबल नहीं है, इसमें हमारा लॉस हुआ। लॉस क्या हुआ, फॉरेस्ट रिसोर्सेज को लॉस हुआ। ओके, फॉरेस्ट रिसोर्सेज का लॉस हुआ जो कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज फॉरेस्ट आर बेसिकली प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन कॉन्टिन्यूसली एंड कंज्यूमिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, और क्या हुआ फॉरेस्ट रिसोर्सेज के लॉस के अलावा, जब आई डिस्कस इन द अर्लियर क्लासेस दैट कि अगर फॉरेस्ट रिसोर्सेज का लॉस होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, फिर ग्लोबल वार्मिंग होगा, फिर क्लाइमेट चेंज होगा। सो ऑल द फिनोमेना आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। ओके, so how we can sustain our development, how we can sustain our development, our development without any destruction activity is called as a sustainable development, सतत विकास हिंदी में इसको बोलते हैं, ठीक है। लेट्स गो, sustainability, the desire to make something sustainable, to make it last, is a common human desire, but sustainable development is used regularly by a vast number of people in different ways and to mean different things. Okay, this is called as a sustainability. Okay, so basically, how we can sustain our environment? Possible levels. What are the possible levels to sustain in our environment? You can see in the slide, single organization. That means one person, maybe individual, maybe in the group, maybe team, maybe company.
At our own level, at our individual level, we can sustain our environment with all possible ways. Okay, and for multi-organization sector, bigger sector, it's little bit different. Okay, and for the community, individual level, network level, with the link networks, we can do something. Okay, and at the geographical, local, regional, national, international, global. So we can individually help to improve our environment and to make sustainability. With the multi-organization, we can also do like Google. Google is doing something for the environment sector and for the sustainable development. Community, at community level, this is also working, and at geographical level, local, regional, national, international, global level, this is also working. Just define the things: single organization, multi-organization, community, and geographical. Community में कैसे करेंगे? Maybe you can start a forestation program. You can teach the local people that how to plant, how to improve the afforestation activity. Don't cut the trees, etc. and all. Okay. So if the local people will aware, definitely they will be able to help in sustainability and to sustain our environment. Okay. At the geographical level, there are so many treaties signed every day with the help of all the so many countries. If you heard the news, every year so many treaties. Treaties means some rules and regulations in between two countries to improve our environment, or some practices to improve our environment. So for these kind of activities, usually so many countries sign some rule and regulations for the improvement of the environment, like carbon footprint. Carbon footprint means how much, what amount of carbon any industry generate. Okay, so any country generate basically. Okay, like in Bhutan, in Tibet, carbon footprint is very less. Wherein in China is maximum, in India is also huge. Okay, but in developed countries, carbon footprint is less. But for some of the developed countries like America, USA, UK, carbon footprint is very big. Okay, they are producing actually carbon footprint जो carbon footprint का basic criteria है वो ये है कि how much amount of carbon is produced from any country in a year. उससे रिलेटेड है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड वो प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, वो कार्बन फुटप्रिंट इंडस्ट्रीज को बेसिकली हम लेते हैं कि इंडस्ट्री में इतना प्रोडक्ट बना तो इतना कार्बन डाइऑक्साइड निकला. ओके ओके ठीक है, ये हो गया सस्टेनेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट. The development without any destruction activity is called as a sustainable development. Okay, right? Clear है? नहीं समझ में आया, kindly ask me. I will check your questions. Then I will go ahead. Okay. Then अब एक और टॉपिक ले लेता हूँ, फिर चेक करता हूँ. Greenhouse gas effect. The Earth's surface gets heated up by a phenomenon that is called as a greenhouse effect. Okay, you can see here some solar radiation is reflected by some solar radiation passes through the clear atmosphere. इधर से आई, इधर से निकल गई. Some solar radiation is reflected by the earth and by the atmosphere, but most of the radiation is absorbed by the earth's surface and warms it. Why it warms it? Because carbon dioxide can absorb heat of the sun, which is coming to the Earth's surface, okay, and not reflected back into the atmosphere. So this phenomenon is called as a global warming. You can see here some of the infrared radiation passes through the atmosphere and some is absorbed and re-emitted in all directions by greenhouse gas molecule. The effect of this is to warm the Earth's surface and the lower atmosphere. Okay. कहने का मतलब ये है कि सन से जो इंफ्रारेड रेज आई और कुछ तो अर्थ के सरफेस पे आई और वो रिफ्लेक्ट बैक होके ऐसे निकल गई, ऐसे आई ऐसे निकल गई. दैट इज ओके, बट वो आई तो बट यहीं पे एब्जॉर्ब हो गई बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया. वी
हम ऑक्सीजन लेते हैं और क्या निकालते हैं बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो ये हमारा ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कहलाता है. हाउ मेनी, यू कैन सी हियर सम ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, perfluorocarbons, and sulfur hexafluoride. So these are the some common greenhouse gases which are affecting and consuming a lot of heat continuously in our Earth surface. Okay, carbon dioxide, carbon monoxide, and carbon dioxide is basically produced due to the combustion of solid waste or fossil fuel. Fossil fuel means petrol, diesel, and coal. Okay, where methane is produced, and production and transportation of coal, natural gas, and oil. Due to this, methane is produced. And nitrous oxide, agricultural and industrial activities. As you know, most of the fertilizers are made up of nitrogen. Okay, so this nitrogen, when the farmer use this nitrogen into their fields, some of the nitrogen are absorbed by the plant, but rest of them is contaminate the land. वो जो रेस्ट रहते हैं कुछ तो एब्जॉर्ब हो गया, थोड़ा सा उस लैंड में रहा और वहां पे क्या किया, hazardous effect create किया. Okay, and you can see here for the industrial processes, HFC, PFC, and SF6, these are produced due to the greenhouse, due to the industrial processes. So this is the some of the greenhouse gases. बाकी आपको pollution में पढ़ाया गया होगा, था उसमें भी greenhouse gas का डिस्कस किया गया था atmosphere में. Temperature change, you can see the temperature change. Okay, then greenhouse gas emission increase. Since pre-industrial time, atmospheric concentration of carbon dioxide, methane, and nitrous oxide have climbed by over 31%, 151 and 17% respectively. Scientists have confirmed this is primarily due to the human activity. Burning of the coal, oil, and gas, and cutting down forests are largely responsible. Just read this line, cutting down forests are largely responsible. We are continuously increasing desertification. We are continuously increasing desertification, which leads to cutting of the trees. And due to cutting of the trees, definitely carbon dioxide gas will be increased. And if the carbon dioxide will be increased, the heat will be absorbed here, and it will produce a phenomena, heating phenomena, that is called as the greenhouse gas. ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सारे के सारे हीट प्रोड्यूस करते हैं. अब ग्रीन हाउस गैस इमिशन, यू कैन सी हियर अबाउट लिटिल बिट अबाउट ग्रीन हाउस गैस इमिशन. मैंने अभी कार्बन फुटप्रिंट की बात की थी. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड 81% ऑफ द ग्रीन हाउस गैस, 81% अर्थ एटमॉस्फेयर में इसका होता है, क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है और अदर गैसेस करते हैं. ठीक है, तो दिस इज समथिंग अबाउट योर sustainability, what is sustainable development, and what anybody or any individual or any organization or any international organization can participate, how they can participate, and something about the greenhouse gas and global warming. Okay, I think these two topics are clear. Now I'm going to discuss about ozone hole and some environmental laws. ओजोन होल के बारे में बताऊंगा, एसिड रेन के बारे में बताऊंगा, फिर कुछ एनवायरमेंटल लॉस के बारे में बताऊंगा जो कि इस यूनिट में है. दिस इज अ वेरी स्मॉल यूनिट. ओके, तो अभी पहले आपका क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, अगर आपको समझ में आया ये दो यूनिट तो. Hmm. 19 आपके पेपर्स कैसे होंगे इससे रिलेटेड, आई थिंक आई डोंट हैव एनी नोटिस. ओके, मे बी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोला है, आपका फर्स्ट ईयर है, कौन सा ईयर है आपका? हाँ, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर है, इन्वायरमेंटल साइंस का है. ओके, so in most of the case Delhi University here, आपका शायद ऑनलाइन ही होगा. ओके, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके एक बार विजिट कर लेना, उसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा, साक्षी क्लियरली आपको पता चल जाएगा कि आपका ऑनलाइन होना है ऑफलाइन होना है. ठीक है,
एंड मोस्ट प्रोबेबली अभी कुछ नोटिस आया है 11 फेब को, ठीक है, मतलब कल ही आया है, तो एज पर दैट नोटिस शायद आपका ऑनलाइन होना चाहिए, बट आई एम आल्सो नॉट श्योर। जस्ट गो थ्रू द दिल्ली यूनिवर्सिटी वेबसाइट नोटिसेस। दिल्ली यूनिवर्सिटी वेबसाइट का यहाँ पे नोटिस वाला कॉलम दिया होता है, उसको देख लो, उसमें आपको मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस आपका ओपन बुक एग्जामिनेशन होगा, वो भी ऑनलाइन होगा, ठीक है, ओपन बुक एग्जामिनेशन इन ऑनलाइन मोड होगा। और और किसी का कोई क्वेश्चन? अभी जो मैंने 2 टॉपिक बताया सस्टेनेबिलिटी एंड उससे रिलेटेड, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर ना, सो आई कैन गो अहेड। ओके, एग्जाम से रिलेटेड जो आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, मैंने आपको बता दिया कि ऐसे ही होगा। ठीक है, बाकी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखते रहो, आपको वहां पे सब कुछ मिल जाएगा। ओके साक्षी, और कोई डाउट है आपको तो आप वो पूछिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज ओजोन होल। व्हाट इज ओजोन होल? अभी सस्टेनेबिलिटी बताया, ग्रीन हाउस गैस बताया, ओजोन होल। As we know, our atmosphere is divided into 4 parts as per the data available scientifically. The nearest part of the Earth crust is troposphere. Second is stratosphere. Third is mesosphere, and fourth is ionosphere. Okay, so you can see here troposphere is here around 12 kilometer, and above part is protective natural ozone layer. Here ozone is found. Okay, then stratosphere is there, then this is mesosphere, then ionosphere. Okay, ट्रोपोस्फीयर में ही सारी एक्टिविटी होती है। सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट चलते हैं, माउंट एवरेस्ट भी इसी पे है, ठीक है, यू कैन सी। और हमारा ओजोन होल लेयर कहाँ पे है? अराउंड 14 किलोमीटर एंड अबव इज आवर ओजोन होल, वेयर प्रोटेक्टिव नेचुरल ओजोन लेयर भी है, स्ट्रेटोस्फीयर भी है, मेसोस्फीयर भी है। ओके, so these are the atmospheric layers of the environment. Okay, तो बेसिकली जो पोल्यूशन कॉज होता है वो होता है हमारा ट्रोपोस्फीयर में। ट्रोपोस्फीयर में मैक्सिमम पोल्यूशन क्रिएट होता है, कॉज होता है। और जो हमारे ओजोन होल को, ओजोन का काम होता है, अभी देखो आगे बताया, मैं बताता हूँ। ओजोन का जो काम होता है, वो जो अल्ट्रावायलेट सन की रेज आती है उसको एब्जॉर्ब करना, और हमारे ऊपर हार्मफुल वो रेज नहीं पड़ती हैं, जिससे हमारी बॉडी सही रहती है। और जैसे हम लीव्स की बात करें, अगर लीव्स पे भी वो लीव्स रेज पड़ती हैं तो लीव्स में भी कहीं ना कहीं डिफॉर्मिटी क्रिएट करती है। ओके, और उसकी क्यूटिकल्स जो एक वैक्स की लेयर होती है लीव्स की चारों तरफ, वो खत्म हो जाती है, फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी को लेस कर देती है, सेक्टा ये सब हो जाता है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर फोटोलाइज यील्डिंग ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। ठीक है, बस आप इतना जानो, ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो O3 है, ठीक है। ऑक्सीजन का कंपाउंड है O2, जब O से मिलता है, ठीक है, और जब फोटोलाइज्ड होता है तब ओजोन का फॉर्मेशन होता है। ओजोन एंड ऑक्सीजन एटम्स आर कंटिन्यूअसली बीइंग इंटर कन्वर्टेड एज ए सोलर यूवी ब्रेक्स ozone, and the oxygen atom react with the another oxygen molecule first. Ozone is lost by the reaction of the oxygen atom of the ozone molecule with each other or some other trace gases such as chlorine flow. इसको आप जस्ट देख लो और समझ लो कि O3 का जो फॉर्मूला होता है, O3 जो होता है वो ओजोन होता है। जो ऑक्सीजन O2 प्लस O मिलेगा तो ऑक्सीजन बन जाएगा, ऑक्सीजन के साथ ओजोन बन जाएगा, और जब O3 का मॉलिक्यूल टूट जाएगा तो फिर ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा और O में कन्वर्ट हो जाएगा, O2 प्लस O में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। Okay, in this slide you can see what amount and which ultraviolet rays is in which parameters, nanometers. Actually, we can measure ultraviolet rays in nanometer. So in which
nanometers, in between which nanometer ozone can absorb the ultraviolet rays. Okay, just see the ground surface is about 15 kilometers. This is called a troposphere. Above troposphere, in stratosphere, ozone layer is there. Ozone layer is found in the stratosphere. Okay, so these harmful rays, these rays are harmful. Just see the cursor of my mouse. The ray in between 100 to 280 nm is not harmful, but for the UVB in between 280 to 315 nm, this is very harmful, and in between 315 to 400 nm, this is very hazardous and have very the hazardous kind of effects. Okay, the catalyzed cycle of stratospheric ozone production and destruction. Okay, let's see this slide. आप लोगों का कुछ क्वेश्चन है तो आप टाइप करो, मैं देखता हूँ, फिर आपके क्वेश्चन आंसर को बताता हूँ. ठीक है, मैं इसको ओजोन होल को खत्म करके फिर लूंगा, जहां नहीं समझ में आएगा यू कैन आस्क मी. यू कैन सी हियर ओजोन डिप्लीशन प्रोसेस कैसे होता है. ये है ओजोन. ओके, सीएफसी रिलीज, जो इंडस्ट्रीज से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है वो ओजोन के O3 के मॉलिक्यूल को तोड़ देता है या ब्रेक डाउन कर देता है. सीएफसी राइजेस इनटू द ओजोन लेयर. सीएफसी यहां से निकला, राइज हो गया ओजोन लेयर में. ठीक है, यहां से निकला सीएफसी राइजेस. यूवी रिलीज सीएल फ्रॉम सीएफसी 3. देखिए यहाँ पे यूवी रिलीज अल्ट्रावायलेट रेज जो सन की आई, उन्होंने सीएफसी पे अल्ट्रावायलेट रेज पड़ी, यूवी रेडिएशन, और यूवी रेडिएशन से वो ब्रेक डाउन हो गया. किसमें हुआ ब्रेक डाउन? सीएल में, क्लोरीन में हो गया, सीएल में हो गया. ठीक है, फोर्थ देखो, सीएल डिस्ट्रॉयज ओजोन लेयर. ये सीएल फोर्थ यहाँ पे ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रही है. जस्ट सी द कर्सर. ओके, CFC rise into the ozone layer where UV release CL from CFC and CL destroys ozone and depleted ozone. More UV, more ultraviolet rays, more skin problem, maybe skin cancer or any kind of other disease or any kind of other harmful effects on our body or plant or flora and fauna. कहीं पे भी पड़ सकता है ना वो इफेक्ट. यहाँ से सीएफसी निकला, सीएफसी अल्ट्रावायलेट रेज के से रिएक्शन करके O3 बनाता, O3 और सीएल बनाया, क्लोरीन बनाया. ये क्लोरीन O3 ओजोन को डिस्टर्ब किया, कट कर दिया, ओजोन को डिप्लीट कर दिया. ठीक है, तो ये ओजोन डिप्लीटिंग प्रोसेस है थ्रू द सीएफसी. सो देयर आर सो मेनी गैसेस व्हिच आर ओजोन डिप्लीटिंग एजेंट्स. ओके, बट दे एक्ट like this. They have different chemical processes, different chemical processes, but they basically destroy our ozone, which is protecting us, plant and animals, from the harmful ultraviolet rays of the sun. Okay, is it clear? ओजोन क्लियर हुआ. कौन कौन सी गैसेस हैं, कहाँ पे ओजोन कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में. ठीक है, किस अल्ट्रावायलेट रेंज के को वो एब्जॉर्ब करती है? 315 से 400 nm के राउंड में. ठीक है, ये एब्जॉर्ब करती है, बट अभी प्रॉब्लम इसकी वजह से हो रही है कि ये 315 से 400 nm तक हमारे पास पहुंच जा रही है ओजोन होल डिप्लीशन की वजह से. ठीक है, सीएफसी जनरेट हुआ, यूवी रेडिएशन ने इसको सीएल में तोड़ दिया, सीएल ने फिर ओजोन को खत्म किया, फिर ओजोन जब खत्म हो गया तो ये सन के अल्ट्रावायलेट रेस सीधे हमारी बॉडी पे आ गई. ठीक है, और डिफरेंट प्रॉब्लम क्रिएट किया इन लोगों ने. ठीक है, एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? Let me check your questions if you have written anything. ओके, अब यहाँ पे आगे आ जाओ. ओजोन होल के बाद यस, दिस इज एसिड रेन फॉर्मेशन. एसिड रेन होता क्या है बेसिकली, ये समझो. प्रेसिपिटेशन मतलब जो ऐसी बारिश है, प्रेसिपिटेशन लेस देन 6 pH इज कॉल्ड एज एसिड रेन. ड्रिंकिंग वाटर का pH 7 होता है, उससे कम अगर pH होता है. pH एक वाटर मेजरमेंट की यूनिट है जो बताती है वाटर क्वालिटी के बारे में. ठीक है,
तो अगर 6 pH या उससे नीचे होता है तो वो एसिडिक होता है, वो एसिड रेन का फॉर्मेशन करता है. दैट मींस प्रेसिपिटेशन लेस देन 6 pH इज कॉल्ड एज एसिड रेन. अब देखो यहाँ पे कि एसिड रेन में 6 pH आया कहाँ से, रेन में एसिड कैसे आया. जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स निकलते हैं लाइक सल्फर डाइऑक्साइड SO2 निकला, that went into the atmosphere where they combine with the water and form H2SO4. एसिड रेन वहां बनाते हैं, पानी के साथ जाएंगे, वहां पे रिएक्शन होगा और वहां पे एसिड रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा. तो वो जो बारिश होती है वो क्यूटिकल्स जो लीफ की होती है उनको खराब कर देती है, ह्यूमन बॉडी पे पड़ती है, कैंसर तक कॉज कर देती है. एंड यू नो लिटिल बिट आल्सो अबाउट दिस, आपने बहुत सुना होगा इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन ताजमहल. ताजमहल के एग्जांपल से आप समझो. ताजमहल में क्या हो रहा है, पहले वो व्हाइट कलर का मार्बल लगा हुआ था, अभी वो येलोइश हो रहा है. बिकॉज ऑफ व्हाई, ड्यू टू एसिड रेन. ड्यू टू एसिड रेन, एसिड रेन की वजह से ऐसा हो रहा है. Isn't it clear? Precipitation less than 6 pH is called as acid rain. इसका एक फॉर्मूला है. SO2 और NOx is the basic agents हैं जिनकी वजह से एसिड रेन फॉर्मेशन होता है. Okay, now educational objective to understand how the pH level of an environment affect living organisms. Okay, to understand this, ठीक है. तो अभी what is the acid rain ये देखिए आप. Form when gases such as carbon dioxide and SO2 react with the water in the atmosphere. Okay. Form when the gases such as CO2 and SO2, कार्बन डाइऑक्साइड है या SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सब कहाँ से निकलते हैं और कहाँ पे फॉर्म होते हैं. These are the primary pollutants which combine together to form secondary pollutant, and acid rain is one of them. Primary pollutants are basically emitted from the source directly, and secondary pollutants are those pollutants who combine into the atmosphere and form different types of pollutants. Okay. Okay, now let us come on the pH of the raindrops. As low as pH of 2, very harmful to our living environment. pH 2 के करीब भी हो जाता है, लेकिन 6 pH से जहां कम हुआ, that is called as acid rain. Okay, 6 pH से जहां कम हुआ वो हमारा acid rain कहलाता है. You can see here in the pictorial representation NO2 plus H2O, nitric acid HNO, SO2 plus H2O, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. मैंने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले कि SO2 वाटर से जब रिएक्ट करेगा, वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O है, क्या बनाएगा, H2SO4 बनाएगा. सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन एसिड, different types. When CO2 reacts with the water, carbonic acid is formed. You can see here about how the chemical consequences are there, and they are combining together to form some different kind of harmful chemicals. Okay, when SO2 reacts with the water, sulfurous acid is formed. Okay, SO2 plus H2O, hydrogen. This is the aqueous. aqueous means क्या होगा, aqueous water के form में जो होगा, सॉलिड नहीं होगा, एक्वियस फेज में होगा. व्हेन NO2 रिएक्ट विद द वाटर, क्योंकि पानी हमारा वाटर का है ना, H2O हमारा क्या है, एक्वियस है ना. एक्वियस फेज मींस पानी वाटर के फॉर्म. तो जो क्या, तो वहां पे जो वाटर के साथ ही तो रिएक्शन हो रहा है पूरा का पूरा. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. वाटर से CO2 मिलेगा तो क्या होगा, SO2 मिलेगा तो क्या होगा, और 2NO2 मिलेगा तो क्या होगा. हाउ डज एसिड रेन अफेक्ट अस? इट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. It poisons plants, it damages metals and limestone, it kills fish. बारिश हुआ, पॉन्ड में फिश है, अगर वहां पे बारिश हो गया तो फिश को खत्म कर दिया. लाइमस्टोन, जैसे मैंने ताजमहल का एग्जांपल दिया, इट पॉइजनस प्लांट की लीव्स, प्लांट के स्टेम, उनके लिए भी होगा. ठीक है. और अगर ये एसिड रेन सॉइल पे पड़ गया, सॉइल पे, तो वहां पे जो माइक्रोब्स होगा उसके लिए भी बहुत टॉक्सिक होता है. As you know, microorganisms are the scavenger of any ecosystem. They basically feed on dead body. मतलब जो भी डेड बॉडीज होती हैं उसको माइक्रोऑर्गेनिजम्स खा जाते हैं स्कैवेंजर के फॉर्म में और उसको खत्म कर देते हैं. तो ये हमारा एसिड रेन हो गया. ठीक है. इट डैमेजेस मेटल्स एंड लाइमस्टोन, इट किल्स फिश. फिश को के लिए मैंने बता दिया. ठीक है. तो ये कुछ इफेक्ट हैं एसिड रेन के. ओके,
सो दिस इज समथिंग अबाउट योर एसिड रेन, कैसे वो फॉर्म होता है, ठीक है। वैसे किसने पीएच से लेस होता है तो उसको एसिड रेन बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, SO2 है, 2NO2 है, जो कि रिएक्ट करता है वाटर के साथ और एक्वियस फेज में एसिड रेन का फॉर्मेशन करता है। एंड व्हाट इज द बेसिक इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन अस, ये हो गया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एसिड रेन। अब मैंने क्या बताया, सस्टेनेबिलिटी बताया क्या होता है, फिर आपका ग्लोबल वार्मिंग बताया, अब मैं क्या बता रहा हूँ, एसिड रेन बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ओजोन होल भी बताया, ग्रीन हाउस गैस बताया, फिर ओजोन होल बताया, फिर आपको एसिड रेन बताया, ठीक है। अब मैं इन्वायरमेंटल लॉस के बारे में बात करूंगा। एसिड रेन हो गया आपका, ओजोन लेयर हो गया आपका, ग्रीन हाउस गैस क्या होता है वो हो गया, और सस्टेनेबिलिटी, 4 टॉपिक हो गए इस चैप्टर के। किसी का कोई क्वेश्चन स्टूडेंट्स? ओके, चलो स्लाइड देखते हैं। Okay, now we will discuss about the environmental laws and practices. इंडिया में कौन कौन से environmental law हैं जिनको यूज करके हम environment को सेव कर सकते हैं? Okay, see here. The Constitution of India clearly states that it is the duty of the state or any country to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wildlife of the country. Okay, the department of our ministry, there is a Ministry of Environment and Forest, which was established in 1980s. This latter became the Ministry of Environment and Forest in 1985. ठीक है, पहली बात तो देखो हमारा environment का है क्या है, our surrounding is called as our environment, where lithosphere, hydrosphere and atmosphere is present, which combine together to form biosphere, and our biosphere is our environment where we are interacting themselves and form a system that is called as ecosystem। तो ये हमारा environment का concept हो गया। Then the अब देखना है यहाँ पे ये है कि हमारा biodiversity है, where there are 2 conservation techniques, one is in situ and another is ex situ, discussed in the biodiversity class। Okay, so how to control these kind of activities, these kind of harmful activities and negative activities from the environment for the protection and conservation of the environment? So for the conservation and protection of the environment, government thought that there should be some rules and regulation, and they create some rules and regulation to control these kind of activities। As you know, in the forest area, हर एक सिटी में एक फॉरेस्ट एरिया होता है, एक फॉरेस्ट ऑफिसर होता है, उनका होता है कि कोई भी प्लांट कट नहीं होना चाहिए, कट होगा तो वो प्रॉपर गाइडलाइन के थ्रू कट होगा, या प्रॉपर उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनेगा, उससे उस सबकी बेसिस पे होता है, ठीक है। यू कैन सी हियर, तो इसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट ने कुछ रूल बनाया है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने कुछ नियम बनाया और एक मिनिस्ट्री की स्थापना या बनाया, जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट बोला जाता है, पर्यावरण मंत्रालय बोला जाता है, जो कि 1985 में एक्ट में आई थी। ओके, so the Constitution of India clearly state that it is the duty of the state to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country। Okay, the Department of Environment was established in India in 1980। ठीक है, ये मैंने बता दिया, अब let's go ahead। Okay, first law जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, I am going to discuss about the EPA, Environmental Protection Act 1986 came into force soon after the भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, उसके बाद ये रूल आ गया था, फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, क्या कर सकते हैं इसमें। देन आफ्टर अ लार्ज नंबर ऑफ लॉज के, उसके बाद डिफरेंट लॉज, डिफरेंट रूल्स आते चले गए एज पर द केस स्टडी। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, कहीं पे कोई डिजीज हो गई, जैसे इटाई मिनामेटा जापान में हो गया था मर्करी पॉइजनिंग से। तो ऐसे ऐसे करके एक एक रूल आते चले गए। फिर वाटर के लिए एक्ट है, एयर के लिए एक्ट है, सॉइल के लिए एक्ट है, प्लांट के लिए एक्ट है, इंडस्ट्रियल इमिशंस के लिए एक्ट है।
Here, one thing you should know that government has established CPCB, Central Pollution Control Board, which is able to regulate and have authority to summarize the any industrial activities, what quantity of their what quantity of solid or liquid waste they are producing continuously. Okay, and in every state there are so many SPCB, State Pollution Control Board, which is governed by the CPCB. Okay, CPCB is the main authority and SPCB is the subordinate offices. These are looking for the industrial activities with who are creating most pollution mostly. Okay, so they have certain rules and regulation. They have certain AQI index, water quality index, soil quality index. So in this index, all the chemicals are kept together, and there is some limit beyond which any kind of pollutant will be harmful or any kind of substance will be harmful. So permissible level should be maintained. Permissible level of any pollution or any pollutant or anything should be maintained. Okay, so this is called this इसके बेसिस पे कि हम वहां पे एक प्रॉपर मेजर करें कि उससे ज्यादा पोल्यूशन नहीं होगा, इसलिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को बनाया गया। उसके बाद बहुत सारे लॉ आते चले गए। ठीक है, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल आया, टाइगर एक्ट आया, वाटर एक्ट आया, सॉइल एक्ट आया, ऐसे ऐसे करके। ओके, अब देखो, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ द एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन दैट हैव कम इनटू इफेक्ट। कुछ जनरल रूल्स आए, कुछ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के लिए, वाटर के लिए आया, एयर के लिए आया। तो सबसे पहला जो एक्ट आया था जनरल, वो था द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। If you are writing, kindly note down. In Article 253 of the Indian Constitution, this is written and enacted that for the protection and improvement of the environmental quality, control and reduce pollution from all sources, this law is formed. Okay, इस लॉ को बनाया गया, मतलब इसके बेसिस पे। Are you able to see the slide? I hope सब लोगों को स्लाइड दिख रहा होगा। Kindly say if you are not able to see the slide. किसी का क्वेश्चन था? अब दिख रहा है स्लाइड सबको? किसी ने मैसेज किया? स्टूडेंट्स आप मेरे को ओके कर देना अगर स्लाइड मैंने शो किया हुआ है। ठीक है, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ द एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन दैट हैव कम इनटू द इफेक्ट। मैं फिर से दिखा देता हूँ प्रीवियस स्लाइड्स को, केवल मैंने ये स्लाइड दिखाई थी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक ने 1985 में एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया, फिर 1986 में ओके में इफेक्ट में आया, फिर 1989 में एक दूसरा लॉ आ गया। तो इतने टाइप्स के हैं एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन। जनरल है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है, वाटर है, एयर है। ठीक है, okay, let me check for your question answer. Okay, kindly see the slide. नाइनटीन 1986 में आया था तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल आया था, स्टैंडर्ड था इमिशन और डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट। 1989 में फिर वही ऑब्जेक्टिव ऑफ 1989 में एक दूसरा रूल आ गया जिसको कहते हैं हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 1989 टू कंट्रोल द जनरेशन, कलेक्शन, ट्रीटमेंट, इंपोर्ट, स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ द हजार्डस वेस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, 1991 में आया था पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट एंड रूल्स एंड अमेंडमेंट 1992 में, वो फोर्स में आया, मतलब उसके बाद से वो शुरू हो गया। ओके ओके, सो 1989, 1991 और उसके पहले 1986
में रूल्स बहुत सारे बने। फिर 1995 में द नेशनल एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट आया। 1995 में नेशनल एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट आया, ठीक है, जो कि 1998 में एक बायोमेडिकल वेस्ट आया, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल आया। फिर द एनवायरनमेंट सिटिंग फॉर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स रूल आया 1999 में। 2000 में द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल। फिर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के रेगुलेशंस के लिए 2000 में कोई एक्ट आया। फिर बैटरीज के रेगुलेशन के लिए कोई एक्ट आया, ठीक। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रूल्स जो जनरल रूल्स थे वो आते चले गए। अब आपको कौन सा अच्छे से पढ़ना है? You should know about the Environmental Protection Act, Hazardous Waste Management Act, 1986, 1989. These are very important rules. Okay, you should know about this. ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओके, पेनाल्टीज। अब हर एक रूल में कुछ ऐसे रूल्स भी हैं जो ये बताते हैं कि इस लेवल से ज्यादा पॉल्यूशन नहीं क्रिएट होना चाहिए, इस लेवल से ज्यादा आप कुछ डिजास्टरस एक्टिविटी नहीं कर सकते हो, अगर आप करोगे तो आपको ये पेनाल्टी लगेगी। सेक्शन 15 ऑफ द ईपीए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में है, इफ अ पर्सन फेल्स टू कंप्लाई विद एनी प्रोविजन और एनी डायरेक्शन इश्यूड अंडर दिस एक्ट देन ही शैल बी पनिश्ड फॉर ईच फेलियर एंड इम्प्रिजनमेंट हो जाता है उसका, which may extend to 5 years or fine which may extend to rupees 1 lakh or both. If failure continues after conviction for first failure, an additional fine will be charged as a 5,000 rupees for every day. ठीक है, ये कुछ पेनल्टीज हैं, आपको पता होना चाहिए, ये शुड नो। लेकिन एक्ट के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए जो आपके सिलेबस में है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट और हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो कि 1986 और 1989 में आया था। ठीक है, ये कुछ जनरल रूल्स हैं जो मैंने आपको बताया। अब मैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करूंगा, फिर वाटर के बारे में बात करूंगा, फिर एयर के बारे में बात करूंगा, उसके बाद आपकी यूनिट ये कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट 6 में इतना ही है, ठीक है। अभी तक जो मैंने डिस्कस किया, मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताया, then I discuss about the global warming, then discuss for the acid rain formation, this then completed ozone layer and ozone layer depletion. Okay, so right now I am taking and I have completed about some of the general rules which are very important for the conservation and protection of the environment. Okay, so in next slide I am going to take Forest and Wildlife Act. अभी तो हम सॉइल वाटर की अभी हम इसकी बात कर रहे थे कि होल इन्वायरमेंट को हम जनरली कैसे कवर करेंगे। अब फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के लिए क्या किया जाए, जैसे अभी देखो गिर फॉरेस्ट है वो बहुत कौन सा व्हाइट लायन है वो बहुत ज्यादा कम हो गया जो कि गिर फॉरेस्ट में पाया जाता है। ऐसी बहुत सारी स्पीसीज हैं जो एक्सटेंड हो गई हैं, कुछ इंडेंजर्ड हो गई है, कुछ खत्म हो गई है, ठीक है। तो 1927 में बिफोर आवर इंडिपेंडेंस द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट एंड अमेंडमेंट आया था जो कि 1984 में आके फॉर्म हुआ, ठीक है। इट वाज इनेक्टेड टू कंसोलिडेट द लॉ रिलेटेड टू फॉरेस्ट, the transit of forest produce and the duty leviable on timber and other forest produce. Okay, in 1972 this act came into the light that the Wildlife Protection Act and Rules 1973 and amendment 1991 provides for the protection of birds. Now they also considered birds, animals and plants all for all matters connected therewith. Okay, 1980 में क्या हुआ कि सारे फॉरेस्ट को ले लिया, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रूल्स ईयर्स में आते चले गए, उनका डिफरेंट डिफरेंट टाइप से अमेंडमेंट होता चला गया जैसे जैसे रूल्स की जरूरत पड़ी, ठीक है। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया 1972 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट चैप्टर 6 है उसका जो डील करता है विद द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ द ऑफेंसेस। सेक्शन 51 डील्स विद द पेनल्टीज। Kindly note down these points. Section 51 deals with the penalty and chapter 6 deals with the prevention and detection of the offenses. Any person who contravenes any provision of rule
of this act shall be punished with the imprisonment for extent of 3 years or fine extending up to, अभी तो कितना हो गया 50,000 या 1 लाख है 25 तो पुराना हो गया ठीक है। फिर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया अंडर सेक्शन 33 ऑफ दिस एक्ट इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 6 मंथ 6 महीने की जेल है और 5,000 रुपए का फाइन है। ये करेक्ट है, ये अभी रिसेंट डेटा है ठीक है। दोनों पेनाल्टी लगेगी किसी भी पर्सन पे हु वायलेट्स एनी ऑफ द रूल अंडर दिस एक्ट। ओके क्लियर, ये हो गया फॉरेस्ट एक्ट। फॉरेस्ट एक्ट क्लियर है, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का फॉरेस्ट एक्ट में? फिर मैं वाटर एक्ट लूंगा और एयर एक्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। ओके वेट स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू शो द स्लाइड। मैं स्लाइड को फिर से प्रेजेंट कर रहा हूँ। वेट ओके तनु एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैंने जो अभी समझा है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। नहीं मैं नोट तो नहीं प्रोवाइड करूंगा, क्लासेस तो चल रही हैं, अभी नोट्स नहीं प्रोवाइड करूंगा। आपका पूरा स्टडी मटेरियल एसओएल की वेबसाइट पे दिया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो जस्ट गो थ्रू द एसओएल वेबसाइट, आपको जस्ट गूगल करना है एसओएल स्टडी मटेरियल फॉर अंडर ग्रेजुएट ईवीएस क्लासेस या इन्वायरमेंटल साइंस क्लासेस, आपको दोनों मिल जाएगा। आप वहां पे देखो पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल है, आपके सिलेबस को एग्जैक्टली डिटो वही है, उसी के बारे में पूरा का पूरा डिफाइन किया गया है। ओके अभी मैं समझा देता हूँ। और किसी का कोई क्वेश्चन है? चलो स्लाइड लेते हैं फिर। क्लासेस ओपन होने का तो एनोनिम जो भी है अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आप लोगों का, तो ये सेमेस्टर तो आई थिंक नहीं होना चाहिए शायद क्लास ओपन, नेक्स्ट में भी हो जाए ठीक है। अभी मैंने बताया आपको, सबसे पहले मैंने सस्टेनेबिलिटी लिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बताया, फिर ग्लोबल वार्मिंग बताया, फिर एसिड रेन बताया, फिर ओजोन होल बताया। उसके बाद हम एक्ट में आ गए। पहला वाला मैंने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट लिया, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल लिया, वो मैंने आपको बताया किस ईयर में आया था, क्यों हुआ आया था। फिर मैंने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्ट बताया अभी ठीक है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में आप इतना याद रखो एक्ट किस ईयर में बनाया गया था, ईयर आपको याद होना चाहिए। 27 में बना, फिर 72 में अमेंड हुआ, फिर 80 में अमेंड हुआ ठीक है। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 9 सितंबर 1972 में बना। चैप्टर 6 डील विद द प्रोविजन एंड डिटेक्शन ऑफ द ऑफेंसेस है, सेक्शन 51 बना फिर ठीक है। एनी पर्सन हु कंट्रावेंसेस एनी प्रोविजन और रूल ऑफ दिस एक्ट शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर एक्सटेंट ऑफ 3 years और फाइन एक्सटेंडिंग अप टू ₹25,000 और बोथ, ऐसे हो गया ठीक है। फिर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बना। कहने का मतलब ये है कि यू शुड नो अबाउट द एग्जैक्ट ईयर व्हेन द एक्ट इज अमेंडेड एंड व्हेन इट विल, कब ये अपने एक्ट में आया, मतलब कब इसको अप्लाई किया गया, व्हेन इट वाज अप्लाइड इन विच ईयर। ओके सो अब वाटर के लिए मैं बताने जा रहा हूँ ठीक है। तनु समझ में आया आपको? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ईयर आपको पता होना चाहिए, 27, 72, 80 आपका अमेंडमेंट हुआ। फिर 1972 में इसको माना जाता है कि ये एक्ट जिसमें 6 चैप्टर हैं और 51 सेक्शन है, अभी रूल में है, और कोई इस रूल को तोड़ता है तो उसके ऊपर फाइन और चार्जेस लगते हैं ठीक है। मैं वाटर एक्ट के बारे में बात करता हूँ। मैं वाटर एक्ट के बारे में फिर क्वेश्चन आंसर लूंगा, तो आप बता देना अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा जो चीजें नहीं आ रही समझ में। ओके वाटर एक्ट 1982 में, एज यू नो वाटर इज द abundant material present on our earth surface
ठीक है। वाटर कितने फॉर्म में है? वन इज सरफेस वाटर, अनदर इज ग्राउंड वाटर, एंड थर्ड इज मैराइन वाटर, जिसमें मैराइन वाटर हैव अ ह्यूज अमाउंट विद द सो मेनी, बहुत सारा सी है तो पानी, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सी में वाटर बहुत ज्यादा है। अलाउ अब का होता क्या है, अलाउज प्राइवेट राइट्स, अभी जो 1882 में अमेंड एक वाटर का एक्ट आया था, वो क्यों आया था? allows private rights to use a resource that is groundwater by viewing it as an attachment to the land. It also states that all surface water belongs to the state and is a state property. ठीक है। जैसे जब वाटर पोल्यूशन शुरू हुआ तो लोगों ने बोला कि नहीं, ग्राउंड वाटर को चार्जेबल करना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने कुछ रूल बनाए, नहीं ये लैंड से जुड़ा हुआ है तो ये चार्जेबल नहीं होगा और ये स्टेट की प्रॉपर्टी है, बट दिस इज अ नेचुरल रिसोर्स, यू कैन कंज्यूम इट डायरेक्टली, ओके, विदाउट एनी चार्ज। 1897 में इंडियन फिशरीज एक्ट आ गया, ठीक है, 1897 में, वो भी वाटर से जुड़ा हुआ था, जो कि फिशेस को कंजर्व करने का प्रोग्राम था। यू कैन सी हियर in the slide, establishes two sets of the penal offences whereby the government can sue any person who uses dynamite or any explosive substance in any way, whether postal or inland, with intent to catch or destroy any fish or poison fish in the other to kill। मतलब कोई भी पर्सन फिशेस को अगर ये एक्सप्लोसिव सब्सटेंस के थ्रू अगर पकड़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, दैट इज नॉट अलाउड। जैसे कोई पॉइजनस फिश है, कोई पॉइजनस फिश है, तो ह्यूमन बोलेंगे कि ठीक है पॉन्ड में ये आ गया, इसको हम जो है एक्सप्लोसिव से खत्म कर देते हैं, बट वो रूल 1897 का अलाउ नहीं करता। फिर 1956 में आया द रिवर बोर्ड एक्ट आया, इनेबल्स द स्टेट टू इनरोल द सेंट्रल गवर्नमेंट इन सेटिंग अप एन एडवाइजरी रिवर बोर्ड टू रिजॉल्व इश्यूज इन इंटर स्टेट कोऑपरेशन। ठीक है, एक एडवाइजरी होनी चाहिए जिसके थ्रू सारे के सारे डिस्प्यूट, जैसे अभी भाखड़ा, नागल और टिहरी डैम और डिफरेंट डिफरेंट उस पर कोई डिस्प्यूट अगर हो गया तो कैसे उसको हैंडल करना है। 1970 द मर्चेंट शिपिंग एक्ट वहां पे आया था, एम्स टू डील विद द वेस्ट अराइजिंग फ्रॉम शिप्स अलोंग द कोस्टल एरियाज विद इन अ स्पेसिफाइड रेडियस। ठीक है। फिर 1974 में एक्ट आया द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, एस्टेब्लिशेस एन institutional structure for preventing and abating water pollution. It establishes standard for water quality and effluent, जहाँ पे CPCB का क्या रोल था? The CPCB was constituted under this act. 1977 में क्या हुआ था? The Water Prevention and Control of Pollution सेस एक्ट आया था, सेस का एक्ट आया था, जो कि अभी तक चल रहा है। Provides for the levy and collection of fees on water consuming industries and local authority। जब भी कोई इंडस्ट्री कोई प्रोडक्ट बनाती है तो वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर कंज्यूम होता है, because for the cooling purpose, for washing purpose, and so many purposes are included in any industry. So if an industry is polluting much more amount of water and water, एक लिमिट से ज्यादा वो कर रहा है जो उसको डिफाइन किया गया, तो वहां पे वो चार्जेस लगते हैं। फिर 1991 में कोस्टल रेगुलेशन जोन एक्ट आया था। आपको ईयर पता होना चाहिए, उस ईयर में क्या हुआ था, अमेंडमेंट ये पता होना चाहिए। ठीक है। सो दिस इज समथिंग अबाउट योर वाटर एक्ट। वाटर एक्ट में कोई क्वेश्चन है क्या आपका? इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन काइंडली आस्क। नहीं, कॉलेज रीओपन के बारे में रोहित राज जो आया था ना, ये एडमिन का क्वेश्चन है, आप देख लेना, बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आपका शायद ऑनलाइन ही होगा जो कुछ भी होगा, क्योंकि सर मुझको अभी तक आइडिया है। बाकी अगर कुछ भी होता है नोटिस तो आपका एसओएल की वेबसाइट पे आ जाएगा और आपके टीचर्स आपको खुद ही इन्फॉर्म कर देंगे कि आपका ऑनलाइन होने, वो ऑफलाइन होने वाला है। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस जो भी होंगी आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म किया जाएगा। अगर हमारी भी नेक्स्ट क्लास है, जैसे ईवीएस की मेरी नेक्स्ट क्लास अगर कभी होती है, तो जब भी होगी ऑफलाइन होगी तो मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर दूंगा, तो इसके लिए आप चिंता मत करो, आपको बता दिया जाएगा। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी कुछ डिसाइड करती है, फिर एसओएल में आता है, एसओएल डिस्कस करता है, फिर उसके बाद वो ऑर्डर को फॉलो करता है, लागू करता है। ठीक है। आकाश देखो, क्वेश्चन पेपर में हर एक यूनिट इंपॉर्टेंट है और हर एक यूनिट आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। वेटेज किसका होगा, ऐसा कुछ नहीं कि किसी का ज्यादा किसी का कम है, हर एक यूनिट इंपॉर्टेंट है। 7 यूनिट्स में से आपका टोटल 7 यूनिट्स आना है।
जैसे रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल अपना एक अलग इंपॉर्टेंस रखता है, बायोडाइवर्सिटी में एक अलग है, इकोसिस्टम में आपका ये है इकोलॉजिकल पिरामिड है, फूड वे फूड चेन है, उसका अलग इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये तो आपको हर एक यूनिट को गो थ्रू करना है एंड थारोली गो थ्रू करना है। ऐसा नहीं कि आप एक यूनिट पढ़ रहे हो, एक यूनिट को आप वो कर रहे हो तो इट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम। ठीक है, सो यू शुड गो थारोली विथ ऑल द चैप्टर्स। ठीक है आकाश, ठीक है रोहित, रीओपन जैसे ही होता है हम आपको बता देंगे, आपकी क्लास में ही बता देंगे। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, सो आई कैन गो अहेड विद माय स्लाइड नाउ। ठीक है, ये स्लाइड ठीक है ये। हाँ, अब हम एयर पोल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, एज यू नो द कंपोजिशन ऑफ एयर, दिस इज यू आर मच वेल यू आर नोन अबाउट दिस, आपको हर क्लास में बताया गया है, पहली भी क्लास में, उसके बाद जब आपको एटमॉस्फेयर पढ़ाया गया होगा तो कितने परसेंट की गैस कौन से अवेलेबल है वो बताया गया होगा। पोल्यूशन में भी मैंने बताया था, डिस्कस किया था एयर के बारे में। ठीक है, एयर में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन फिर ऑर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस हैं। अब देखो एयर में 1948 में क्या हुआ था। 1948 में the Factories Act and Amendment in 1987 first to express concern for the working environment of the workers ऐसा आया था। 1981 में the Air Prevention and Control of Pollution Act आया, enacted under Article 253 of the Indian Constitution। ठीक है, provides for the control and abatement of air pollution। ठीक है, फिर 1982 में एक एक्ट आया था, the Air Prevention and Control of Pollution। फिर द एटॉमिक एनर्जी एक्ट आया था, डील्स विद द रेडियो एक्टिव वेस्ट। ठीक है, तो ये एयर के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्ट आए थे। वेट 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 वेट, थोड़ा सा क्लोज हो गया, वेट वेट वेट, लेट मी चेक समथिंग व्हाई दिस इज क्लोजिंग। हाँ ओके, अब देखो 1948 में पहला एयर एक्ट आया, इसको नोट करो। The Factories Act and Amendment in the Factories Act and Amendment in 1987। 1987 में फिर जाके अमेंड हुआ, बिकॉज हमारे इंडिया में जब एक्ट्स कुछ आए थे बहुत गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, जो भी गवर्नमेंट रही होगी, और 1980s की बात, 80s के बाद मैक्सिमम एक्ट, ये इसलिए इसका एक रीजन ये भी था कि पहले बहुत इंडस्ट्री नहीं थी, जनसंख्या थी, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा था, but there was no need of any kind of rules and regulation for our natural resources. But as we know, we basically depend on natural resources, so we are consuming a lot and बहुत सारा प्रॉब्लम हम क्रिएट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारा एयर एक्ट आया, एयर एक्ट बन तो गया 1948 में, क्योंकि कुछ उस टाइम पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो बहुत सारे एक्ट बनाए गए थे, बट उसकी जरूरत ज्यादा जब पड़ी उसके अमेंडमेंट में, वो 1987 या 90s के बाद में पड़ी। ठीक है, फर्स्ट टू एक्सप्रेस कंसर्न फॉर द वर्किंग एनवायरनमेंट ऑफ द वर्कर, 1981 में फिर उसको अमेंड कर दिया गया। ठीक है, फिर जिसमें आर्टिकल 253 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो, फिर 1982 में आया, फिर 1982 में फिर उस रूल को और अमेंड कर दिया गया और एक नया रूल आया, द एटॉमिक एनर्जी एक्ट, वो अलग से आ गया। ठीक है, फिर 1987 में द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट आया। एक और एक्ट था जो 1988 में आया था, वो मोटर व्हीकल एक्ट आया था, जिसमें ये था कि जैसे अभी हम जाते हैं बाइक एंड कार का, उसका पोल्यूशन चेक करवाते हैं, उसका एक मेजर होता है क्यूआई इंडेक्स का, इफ माय बाइक इज पोल्यूटिंग मच मोर, देन वो क्या करेंगे, उस पे वो पोल्यूशन सर्टिफिकेट जारी नहीं करते। ठीक है, तो हमको अपनी बाइक को ऐसे रखना है, कार को ऐसे रखना है जैसे उससे ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट ना हो ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। सो द मोटर व्हीकल एक्ट इन 1988। ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट आ गया। स्टूडेंट्स वेट, मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया है, गिव मी 1 मिनट जस्ट टू कनेक्ट माय चार्जर। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन फॉर कनेक्टिंग माय बैटरी। फिर 1988 में आया मोटर व्हीकल एक्ट आया। ठीक है, उसके बाद कुछ पेनल्टीज इससे जुड़ी हुई हैं।
जो कि इस एक्ट को बताती हैं कि इसमें क्या क्या पनिशमेंट है अगर हम कोई रूल्स को वायलेट करते हैं या कुछ ऐसा हम काम करते हैं तो। ओके, okay, so these are all related with the environmental policies and practices. Okay, protection of action under good faith. ठीक है, फिर ये बेसिकली ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो बनाए गए थे। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया सस्टेनेबिलिटी के बारे में, व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी एंड व्हाट आर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, how we can sustain our life on earth and how we can sustain our environment. Second thing we discussed about global warming, third acid rain, fourth ozone hole. Then we discuss about the some rules and regulations which are regulated in India with the government. Okay, अब उसमें कौन कौन से एक्ट हमने पढ़े? So first we discuss about the environmental protection act. उसके बाद कुछ some general rules are there जिसमें environmental protection act आता है, hazardous waste management act and rule आता है। फिर उसके बाद मैंने डिस्कस किया आपको फॉरेस्ट एक्ट, फॉरेस्ट के लिए कौन सा है। फिर फॉरेस्ट के बाद मैंने क्या डिस्कस किया आपसे, वाटर एक्ट के बारे में। फिर हमने डिस्कस किया एयर एक्ट के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया ऑल अबाउट योर चैप्टर 6। आपके चैप्टर 6 में यही सिलेबस है। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आस्क करिए। ठीक है, आई विल गो थ्रू विद ऑल योर क्वेश्चंस। हाँ आकाश, सोयल मटेरियल इज इनफ। ठीक है, वो इनफ है। बाकी अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो तो आपको इराक बरूचा की एक बुक आती है, आप गूगल कर लो कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस फॉर अंडर ग्रेजुएट बुक फॉर इराक बरूचा, तो आपको इजीली फाइंड आउट हो जाएगी, इजीली मिल जाएगी। ठीक है, इजीली वो बुक आप फाइंड आउट कर सकते हो अपने कोर्स को कवर करने के लिए। ठीक है आकाश, और किसी का कोई क्वेश्चन? वैसे सफिशियंट है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों बोथ बुक्स आर देयर, सो दीज आर सफिशियंट। ओके, नो क्वेश्चन इज देयर। आई थिंक अब आपका सारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इन द नेक्स्ट क्लास जो भी आपकी क्लास चलेगी यूनिट 7 होगा, जो कि आपका कोर्स कंप्लीट होगा। ठीक है, जो चीजें आपकी छूटी हुई हैं। हाँ हाँ, इराक बरूचा की है आकाश, IRACH भरूचा, इराक भरूचा। ठीक है, इसमें आप ऐसे डाल देना इराक भरूचा में, गूगल करना इराक भरूचा बुक फॉर एनवायरमेंटल साइंसेज अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, तो आपको एग्जैक्टली वो बुक मिल जाएगी जहां से भी। तनु आप, ठीक है मैं क्लास को क्लोज कर रहा था। ठीक है तनु, मैं आपको एयर वाला एक बार फिर से समझा देता हूँ, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो राइट इमीडिएटली, नहीं तो मेरे मैं क्लास क्लोज करने का टाइम हो जाएगा, अनदर क्लास का टाइम हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन है, काइंडली आस्क इमीडिएटली। ठीक है तनु, आपका क्वेश्चन लेके फिर मैं क्लास को एंड करूंगा। ओके, एयर पोल्यूशन पे आपने बोला है, एयर वाला ना, एयर वाला एक्ट आपको बताना है। देखो एयर का कंपोजिशन हमको पता है, हर क्लास में हमने डिस्कस किया, नाइट्रोजन ज्यादा है, फिर ऑक्सीजन है, फिर आर्गन है, नियॉन है। 1948 में एक एक्ट बना था, द फैक्टरीज एक्ट एंड अमेंडमेंट। ठीक है, जो कि बाद में मॉडिफाई होता चला गया क्योंकि बहुत सारी फैक्ट्रीज थी, वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेंट इंक्रीज करती थी। ठीक है, 1981 में जा करके एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट है। 1981 आपको ईयर याद होना चाहिए। उसमें आर्टिकल 253 अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा बताया गया है। और 1982 में द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन रूल आया। फिर 1982 में द एटॉमिक एनर्जी एक्ट आया। ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म हैं जो एक्ट अमेंड होते चले गए और उसका डिफरेंट डिफरेंट नेम रखा जाता रहा। फिर 1987 में द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट आया। 1988 में मोटर व्हीकल एक्ट आया। ठीक है, तो ये सारे के सारे एयर से रिलेटेड हैं। ये रूल्स क्या है, एयर के लिए ही बनाए गए हैं। कुछ में मोटर व्हीकल एक्ट है जो बाइक्स कार्स ट्रक्स में कितना पोल्यूशन हो रहा है उसको मेजर करता है। कुछ
फैक्ट्रीज एक्ट है जो सबसे पहले 48 में आया था, वो फैक्ट्री से कितना पोल्यूशन कॉज हो रहा है उसको मेजर करता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो पोल्यूटेंट्स हैं कैसे कैसे जनरेट होते हैं वैसे वैसे ये एक्ट आता चला गया। मेन हमारा 1981 है, एयर प्रिवेंशन एंड पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट, ठीक है, जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट भी है, वो 1988 में आया था, ठीक है। 81 वाला आप याद रखो, डेट इज सफिशिएंट। उसमें कितने चैप्टर हैं फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको, जस्ट सी दिस। There are 250. This act is enacted under Article 253 of the Indian Constitution, provides for the control and abatement of the air pollution. Okay, ठीक है, clear है? This is a little bit about you. ठीक है, I hope तनु समझ में आ गया होगा आपको। वो न्यूक्लियर हजार्ड होता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट। न्यूक्लियर हजार्ड जैसे तनु अल्फा बीटा गामा रेज होती है ना, अल्फा बीटा गामा रेज होती है, यूरेनियम होता है, थोरियम होता है, प्लूटोनियम होता है, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं, तो उनसे अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं जो कि हार्मफुली हमारी बॉडी को इम्पैक्ट डालती है अगर हमारी बॉडी में पड़ गई, ठीक है। जब वो हार्मफुल होती है बहुत सारी जगह पे, जैसे कैंसर के सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए अल्फा बीटा गामा रेज का न्यूक्लियर सब्सटेंस का यूज किया जाता है, वो यूजफुल होता है। बट एक फ्रिक्वेंसी के बाद वो वेवलेंथ हमारी बॉडी के लिए, हमारे हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए, हमारी आईज के लिए इरिटेशन प्रोवाइड करता है, तो उससे हमको बचना है, ठीक है। ये होता है रेडियो एक्टिव वेस्ट। रेडियो एक्टिव वेस्ट इज रिलेटेड विद द न्यूक्लियर हजार्ड। अभी जैसे हम करंट टाइम में क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो रहते हैं लोग उनको ऑक्यूपेशनल हजार्ड होता है, तो वो बहुत सारी चीजें मतलब ग्लव्स, हेलमेट एंड ऑल वो सब पहन के यूज करते हैं। फिर भी अल्फा बीटा गामा रेज इतनी हार्मफुल होती है कि वो बॉडी पे इम्पैक्ट डालती है। जिस एरिया में न्यूक्लियर सब्सटेंसेस पाए जाते हैं वहाँ पे न्यूक्लियर हजार्ड बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ओके ओके स्टूडेंट्स, फिर नो क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? ठीक है, मैं क्लास को क्लोज करता हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपकी यूनिट 7 ली जाएगी, ठीक है, जो कि लास्ट यूनिट होगी आपके कोर्स की। धर्मवीर सर, धर्मवीर सर, क्लास कंप्लीट हो गई है। धर्मवीर सर, धर्मवीर सर क्लास को क्लोज करेंगे क्या? धर्मवीर सर एडमिन, धर्मवीर सर काइंडली क्लास को क्लोज करिएगा अगर आप सुन रहे हैं। ओके सर, कर रहा हूँ। ओके सर। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू।